یہ کہانی ہے اس رات کی جب میں رات 12 بجے کے بعد اس پرانے راستے سے گزر رہا تھا۔ میں اکثر اس راستے سے گزرا کرتا تھا، لیکن آج جب میں اس راستے سے گزر رہا تھا تو ہوائیں بہت تیز ہو گئی۔ وہ راستہ ہمارے گاؤں کا کچا راستہ تھا۔ ہمارے گاؤں کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب بھی ہوائیں تیز ہوتی ہیں اس وقت گاؤں کے اس راستے کے اوپر کوئی اندیکھا وجود ہوتا ہے، ایک ایسا وجود جو اکثر لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جو اکثر لوگوں کو ڈراتا ہے، اور اس کا بسیرا گاؤں کے اس پرانے پیپل کے درخت پر ہے جو اسی راستے کے ٹھیک بیچ میں پڑتا ہے۔ میں تو بھی گاؤں کے اس راستے پر بالکل شروع میں ہی تھا۔ ابھی تو میں نے اس پیپل کے درخت کے پاس سے گزرنا تھا، اور آج تھا بھی میں پیدل۔ کبھی کبھار مجھے شہر سے گاؤں آتے خاصی دیر ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ میں 12 بجے سے پہلے ہی گھر واپس آ جاؤں۔ آج جس بس سے میں آ رہا تھا وہ بس خراب ہو گئی تھی۔ اس مجبوری سے مجھے دیر ہو گئی۔ میں جو ہی اس راستے پر آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، کیونکہ پیپل کا درخت قریب آ رہا تھا۔ جیسے ہی دھڑکتے دل اور تیز قدموں کے ساتھ میں نے پیپل کے درخت کو پار کیا، میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میرے کانوں کے ساتھ ایک آواز ٹکرائی۔ اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ آواز ایک مردانہ آواز تھی اور خاصی بھاری آواز تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ آگے بڑھنے لگا تو ایک خوفناک قہقہ گونجا۔ تبھی ایک دم سے میرے آگے کوئی چل رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے ہاتھ میں کوئی سٹک پکڑی ہوئی ہے اور اس کی مدد سے وہ چل رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ شاید یہ وہی ہے جو پیپل کی درخت پر رہتا ہے۔ مجھے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور میں نے اپنے قدم تیز کر لیے۔ جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزرا مجھے ایسا لگا جیسے وہ بڑھ کر مجھے پکڑنے لگا ہے۔ میں نے تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بہت تیزی سے آگے جا رہا تھا، تبھی مجھے اپنے پیچھے سے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ تم نہیں بچو گے، میں تمہیں لینے ضرور آؤں گا۔ میں تیزی سے آیت الکرسی پڑھتا بھاگتا جا رہا تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اتنے میں گاؤں کی آبادی شروع ہو گئی۔ جب میں اپنے گھر پہنچا میں زور سے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ میرے ابو نے دروازہ کھولا اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تمہیں؟ اتنی رات کو تمہیں پتہ ہے نا گاؤں کا راستہ کتنا سنسان ہے اور وہاں پر اس کا بسیرا بھی ہے۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس سے ڈرتے تھے بہت زیادہ، کیونکہ بہت سے لوگوں کے اوپر اس کا بسیرا ہو چکا تھا اور بہت سے لوگوں کو اس نے ڈرایا بھی تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے بھی راستے میں وہ آیا تھا، لیکن میں آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا اور اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا۔ ابو نے کہا کہ غلطی سے بھی دوبارہ 12 بجے کے بعد اس طرف سے مت آنا، کیونکہ وہ اب تمہارا انتظار کرے گا۔ جب بھی تم دوبارہ 12 بجے کے بعد وہاں سے پہنچے وہ تمہارے اوپر حملہ ضرور کرے گا۔ ہمارے گاؤں میں یہ بات مشہور تھی۔ پرانے پیپل کے درخت کے اوپر ایک خوفناک جن کا بسیرا تھا۔ وہ جن اس پیپل کے درخت پر برسوں سے رہتا تھا۔ ایک دو دفعہ گاؤں کے لوگ کسی بزرگ کو بھی لے کر آئے کہ اس درخت کے اوپر سے اس جن کا بسیرا ہٹایا جا سکے، لیکن نہیں، جس نے بھی کوشش کی اس نے اپنی جان سے ہاتھ ہی دھو دیا۔ ایک بزرگ تو عمل کے دوران ہی بے ہوش ہو گئے تھے، اور ایک نے عمل کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے اسے چھیڑا تو یہ مجھے جان سے مار دے گا۔ یہ بہت سخت ایک طاقتور جن ہے جو صدیوں سے اس درخت کے اوپر آباد ہے، اور یہ راستہ اس کا ہے۔ اسی بزرگ نے ہمیں بتایا تھا کہ رات 12 بجے کے بعد اس درخت کے پاس سے نہیں گزرنا۔ میں تو بہت زیادہ ڈرتا تھا کہ میں کیا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کیونکہ دوبارہ کبھی بھی ایسے ہی دیر رات ہوگی تو میں کیا کروں گا۔ میں ہر روز
6-7 बजे तक घर आ जाता था। आज जब मैं वापस आ रहा था, बारिश बहुत तेज थी, तेज तूफानी बारिश थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं। मैं शहर में एक दुकान पर काम किया करता था, शॉपकीपर था। अक्सर वहां से वापसी पर मुझे देर सवेर हो जाती थी। मैं साइकिल पर था। मैंने बहुत तेज साइकिल चलाना शुरू किया। जैसे ही गांव की हदूद शुरू हुई, वो सड़क तेज बारिश बरस रही थी। जैसे ही मैं अपना साइकिल लिए आगे जा रहा था, तो मैं क्या देखता हूं कि एक बूढ़ा आदमी बारिश में भीगता हुआ, कांपता हुआ जा रहा है और साथ रो रहा है, मेरी मदद कर दो, मुझसे चला नहीं जा रहा, मैंने गांव में जाना है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन है। मैंने कहा, बाबा कौन हो? तो कहने लगा, दूसरे गांव से आया हूं। गाड़ी ने उतार दिया था, बारिश बहुत तेज थी, काफी देर से बारिश में भीग रहा हूं, मुझे भी अपने साथ गांव में लेते जाओ, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। यहाँ देखिए, उसने मुझे गांव के एक आदमी के घर का भी बताया। वह हमारे गांव का ही आदमी था। मैंने कहा कि ठीक है बाबा, साइकिल पर बैठ जाओ। मैं साइकिल पर बैठ गया। साइकिल जो है गैर मामूली तौर पर भारी हो गया। मैं साइकिल को चला रहा था, तभी मुझे अपने पीछे से बेतहाशा डरावनी मध्यम से रोने की आवाज़ें आने लगी। ऐसे लग रहा था कि वो मेरे पीछे सिसकियों में रो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। तभी मेरी कमर के ऊपर जब उसने हाथ रखा, उसका हाथ ऐसे था जैसे कोई बर्फ है, जैसे कोई बर्फ मेरे जिस्म के अंदर उतर रही है। यहाँ तक कि मेरी चीख निकल गई। मैंने पलट कर देखा तो वो जो बूढ़ा शख्स था, उसकी आंखें जल रही थी, उसकी आंखों से जैसे रोशनी निकल रही थी। उसका चेहरा इंतहाई हैबतनाक था। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने फौरन साइकिल उधर ही फेंका। मैं खुद भी गिरा, वो भी गिरा। एक खौफनाक चीख गूंजी। मैंने भागना शुरू कर दिया। तेज तूफानी बारिश में उसकी खौफनाक चीखें मेरे कानों को चीर रही थीं। मैं गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। घर के दरवाजे के पास आकर जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था और चीख रहा था, मेरी मदद करो। पूरे गांव में कोई भी बाहर नहीं था। जैसे मेरे अब्बू ने दरवाजा खोला, मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। उन लोगों ने मुझे जल्दी से उठाया, अंदर लेकर आए। करीब 1 घंटे के बाद मुझे होश आया। अब्बू कहते, तुम्हारे पीछे कोई था। जिस वक्त तुम बेहोश होकर गिरे हो, तुम्हारे पीछे काला सा बहुत भयानक चेहरे वाला आदमी खड़ा था। तुम्हारे पीछे वो आ चुका था। मुझे बहुत सा बुखार था। मेरी कमर के ऊपर एक हाथ का निशान बना हुआ था। अम्मी अब्बू बहुत ज्यादा डर गए कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, क्योंकि जब भी वो किसी के ऊपर हमला करता था, उसके बाद वो उस इंसान को जान से मार देता था। अम्मी अब्बू बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि पता नहीं अब क्या होगा। मुझे लेकर दूसरे गांव एक बुजुर्ग के पास गए। उन बुजुर्ग को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर उसने इसको जानी नुकसान देना होता तो पहली राहत ही दे देता। इसको आयतल कुर्सी ने बचाया है। जब ये मुसलसल आयतल कुर्सी का विर्द कर रहा था, वो इसके ऊपर आ ही नहीं सका। और दूसरी बात, जब वो साइकिल पर इसके पीछे बैठा था, तब भी इसके पास कुछ ऐसा था कि वो इसके ऊपर फौरन हमला नहीं कर सका। मेरे पास उस वक्त मेरी अगली जेब में लोहे का एक चाकू था, एक नाइफ, जिसने मुझे बचा लिया। वो मेरे पीछे तक तो आया, लेकिन मुझे जाने नुकसान नहीं दे सका। उन्होंने मुझे दम किया और एक हिफाजत का तावीज़ दिया और कहा कि तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, तुमने बिल्कुल भी रात के वक्त उस साइड से अकेले नहीं आना। मैंने कहा कि ठीक है। कुछ दिन की तो मैंने छुट्टी ले ली। उन्हें बताया कि मैं बहुत बीमार हूँ। कुछ दिन मैं घर में रहा। ठीक रात के पीछे पैर हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होती थी और वो गांव के किसी न किसी आदमी के रूप में मुझे बुलाने के लिए आता था और आकर ये कहता था कि उसे बाहर भेजे, मुझे उससे काम है। और हर बार घर वाले उससे कहते थे कल आना, ताकि वो वहां से चला जाए। कहते हैं कि अगर इस मखलूक को टाल दिया जाए कि कल आना या बाद में आना, तो ये वक्ती तौर पर टल जाते हैं और चले जाते हैं। 7 दिन मैं काम पर नहीं गया। 8वें दिन मैं अपने काम पर गया। आज मगरिब के बाद मैं वापस आ रहा था। मेरे गले में हिफाजत का तावीज़ भी था।
जैसे ही मैं पीपल के दरख्त के पास से गुजरा, मेरी साइकिल के ऊपर किसी ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। वो पत्थर मेरे पीछे पीछे लग रहे थे, आवाजें भी आ रही थी, पर मैंने पलट कर नहीं देखा, न ही हम कलाम हुआ। चुपचाप घर आ गया। उस दिन भी मुझे बहुत सा बुखार हुआ था। उसके बाद अगले दिन फिर जब मैं वहां से वापस आ रहा था, तो जो ही पीपल के दरख्त के पास से गुजरा एक काला स्याह कुत्ता मेरी साइकिल के पीछे लग गया। वो कुत्ता भौंक रहा था और मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन ना तो मैंने उसे भगाया ना ही डराया। चुपचाप तेजी से साइकिल चलाता आयतल कुर्सी का विर्द करता घर पहुंच गया। उस दिन भी मुझे बहुत डर लगा था। उस दिन भी मुझे बुखार हो गया और आज बहुत तेज बुखार था। रात भर हम लोगों के घर के बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थी। अगले दिन हम लोग आमिर साहब के पास फिर गए। उन आमिर साहब ने मुझे एक और तावीज़ दिया और कहा कि इसको अपने साइकिल के ऊपर बांध लो, ताकि तुम्हारी सवारी के ऊपर भी वो हमलावर ना हो सके। वो सख्त तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। 2 दफा तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश नाकाम हुई है। फिर उसके बाद जब मैंने अपने साइकिल के ऊपर वो तावीज़ लगाया, तो अल्लाह का शुक्र है दोबारा वो मुझे नजर नहीं आया किसी रूट में भी। गांव के जो बाकी लोग थे, अक्सर उनके साथ हमला होता था। कोई भी अगर गांव में देर रात के 12 बजे के बाद आता था, तो पीपल के दरख्त का वो खौफनाक जिन उनके पीछे लगता था, उनको डराने की कोशिश करता था। वो इतना डरावना था, उसके कई रूप थे। कभी पीपल के दरख्त के पास आधी रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती थी, तो कभी कोई बूढ़ा आदमी वहां पर रो रहा होता था, तो कभी कोई नौजवान लड़का पीपल के दरख्त के नीचे आधी रात को बैठा नजर आता था। वो पीपल का दरख्त हम लोगों के गांव में आज भी मौजूद है। आज भी इसके ऊपर उसका बसेरा है। वो एक ऐसा शैतानी वजूद है, एक ऐसी कुव्वत है जो उस दरख्त को नहीं छोड़ता। ये हमारे गांव की एक कहानी थी। माय यूट्यूब फैमिली, ये थी रात की कहानियों की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ लाती रहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।